नमस्कार श्रोता मित्रों, हम आनंदित हैं कि इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आप एक बार फिर से उपस्थित हैं। We hope and pray that these series of messages have been a blessing to you. हम प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि ये संदेश श्रृंखला आपके लिए आशीषमय रहे। And today I want to talk to you about your enemy's characteristics. और आज मैं आपसे आपके शत्रु की विशिष्टताओं के विषय में बात करना चाहता हूँ। Because when you understand his characteristics, you will understand how to defeat him. क्योंकि जब आप उसकी विशिष्टताओं को समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि उसे पराजित कैसे किया जाता है। And I want to begin by telling you about a certain selling technique. और मैं आपको एक खास बिक्री कला के विषय में बताते हुए शुरू करना चाहता हूँ। That selling technique is called the bait and switch method. इस बिक्री कला को चोगा डालना और फंसाना कला कहा जाता है। And this is how it works. और ये इस प्रकार से काम करती है। A retailer entices people through advertising to come into his store by offering a well-known brand name for a very low price. एक परचूनिया लोगों को अपनी दुकान में आने के लिए आकर्षित करने के लिए एक प्रसिद्ध कंपनी के सामान का प्रचार करता है कि ये बहुत कम कीमत में मिलेगा। And when the buyer comes in और जब खरीदार अंदर आता है to purchase this particular brand, उस खास कंपनी का माल खरीदने के लिए, he is told that this brand is out of stock. तो उसे बताया जाता है कि ये माल अभी खत्म है। Immediately the customer is offered an inferior brand, तुरंत ग्राहक को कोई घटिया माल पेश किया जाता है, probably for more money. शायद कुछ अधिक पैसे के लिए। A brand name that was used to gain the customer's confidence, एक प्रसिद्ध नाम जिसका प्रयोग ग्राहक का विश्वास जीतने के लिए किया गया था, the brand name that was used to bring the customer into the store, एक प्रसिद्ध नाम जिसका प्रयोग ग्राहक को दुकान में खींच लाने के लिए किया गया था, is not there. वो वहाँ है ही नहीं। But an inferior product is offered. परंतु एक घटिया सामान पेश किया जाता है। This is how Satan works. ऐसे ही शैतान कार्य करता है। And this is how some deceptive people work. और इसी प्रकार कुछ धोखेबाज लोग कार्य करते हैं। There are some people who use some biblical words to capture a seeker's ears. कुछ ऐसे लोग हैं जो एक खोजी के कानों पर कब्जा करने के लिए बाइबल के वचनों का प्रयोग करते हैं। They may talk about Christ or redemption or the cross वो मसीह, छुटकारे या क्रूस के विषय में बात कर सकते हैं without believing the meaning of these words. इन शब्दों के अर्थ पर विश्वास न करते हुए। They use these trusted terms, वो इन भरोसेमंद विचारों का प्रयोग करते हैं, but it's only a method of a bait and switch. परंतु ये केवल चोगा डालने और फंसाने की कला है। I want you to know that the first characteristic of your enemy is deception. मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि आपके शत्रु की पहली विशिष्टता है छल। He is a deceiver. वो छलिया है, He is a destroyer. वो नाश करने वाला है, He's a duplicator, वो नकल करने वाला है, a deviator and a deluder. भटकाने और बहकाने वाला। Tonight, I want you to see his primary characteristic, and that is deception. आज रात मैं चाहता हूं कि आप उसकी प्रमुख विशिष्टता को देखें और वो है छल। Names such as devil and Satan are very significant words. पिशाच और शैतान जैसे नाम बहुत अर्थपूर्ण शब्द हैं। Don't dismiss them, इन्हें खारिज मत कीजिए, because they mean deceiver and slanderer. क्योंकि इनका अर्थ है छलिया और कलंकित करने वाला। And that is what the character of your enemy Satan is all about. और यही आपके शत्रु शैतान का चरित्र है। There is one thing about the deceivers that you must know up front, सबसे पहले छलियों के विषय में एक बात आपको जानना आवश्यक है, and it is this. और वो ये है, Deceivers begin by deceiving themselves first. छलिए सबसे पहले खुद से छल करते हुए शुरू करते हैं, Then they succeed in deceiving others. फिर वो दूसरों से छल करने में सफल होते हैं। They delude themselves first. वो पहले खुद को धोखा देते हैं, Then they're able to delude others. फिर वो दूसरों को धोखा देने में सफल होते हैं। If you are listening for the first time tonight, यदि आज रात आप पहली बार सुन रहे हैं, we are in the middle of a series entitled Know Your Real Enemy. तो हम अपने वास्तविक शत्रु को जानिए नामक संदेश श्रृंखला के मध्य में हैं। We saw first of all how Lucifer was one of the most beautiful of all angelic beings that God created. सबसे पहले हमने देखा कि कैसे लूसीफर परमेश्वर द्वारा सृजे गए सब स्वर्गीय प्राणियों में से सबसे सुंदर था। He was there in the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। He had access to the throne of God. उसे परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाने की अनुमति थी।
Then he became full of pride. फिर वो घमंड से परिपूर्ण हो गया। He wanted to dethrone God. वो परमेश्वर को सिंहासन पर से उतार देना चाहता था। He wanted to sit on the throne of God. वो परमेश्वर के सिंहासन पर बैठना चाहता था। He was prideful. वो घमंड से भरा हुआ था। He did not want to be an obeyer of God's command. वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाला नहीं बनना चाहता था। He wanted to be God. वो परमेश्वर बनना चाहता था। Consequently, God threw him out of heaven. नतीजतन परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से बाहर फेंक दिया। Then we saw how Satan copied the hierarchical structure of the angelic beings into his satanic activities. फिर हमने देखा कि कैसे शैतान ने स्वर्गीय प्राणियों की पद अनुसार व्यवस्था की नकल अपनी शैतानी गतिविधियों में की। There are devils of all ranks and class. हर प्रकार के पद और श्रेणियों के शैतान हैं। We saw how he uses those fallen angels, हमने देखा कि कैसे वो उन गिरे हुए स्वर्गदूतों का प्रयोग करता है। how he uses these demons to oppress, harass, and distress the believers in Jesus Christ. कैसे वो इन शैतानी दूतों का प्रयोग यीशु मसीह में विश्वासियों को सताने, परेशान करने और कष्ट देने के लिए करता है। Today and the next few messages we are going to examine his characteristics. आज और अगले कुछ संदेशों में हम उसकी विशिष्टताओं की जांच करने वाले हैं। And as we go through this message, I want you to be thinking about this question. और जब हम ये संदेश सुनते हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस प्रश्न के बारे में सोचें। This question can be only answered by you. इस प्रश्न का उत्तर केवल आप दे सकते हैं। Do I resemble my real enemy or the Lord Jesus Christ? क्या मैं अपने असल शत्रु जैसा हूं या प्रभु यीशु मसीह जैसा? In my lifestyle, do I model the character of my enemy and the enemy of my soul, or the character of the Lord Jesus Christ? मेरे जीने के तरीके में मेरा आदर्श क्या मेरे और मेरे आत्मा के शत्रु का चरित्र है या प्रभु यीशु मसीह का चरित्र? Do I imitate the enemy of God, or do I endeavor to imitate the Savior of my soul? क्या मैं परमेश्वर के शत्रु का अनुकरण करता हूं या अपने आत्मा के उद्धारकर्ता का अनुकरण करने का प्रयत्न करता हूं? Do I deceive, slander, and malign others? क्या मैं दूसरों की बुराई, हानि या उनसे छल करता हूं? Or do I encourage and uplift and uphold? या क्या मैं प्रोत्साहित करता, ऊंचा करता और उत्साहित करता हूं? I want you to be thinking about this as we go through this message. मैं चाहता हूं कि हमारे इस संदेश को सुनते हुए आप इस विषय में सोचें। The first thing you need to know about your enemy is deception. पहली बात जो आपके शत्रु के विषय में आपको जानने की आवश्यकता है वो है छल। And the first thing you need to know about deception is this. और छल के विषय में पहली बात जो आपको जानने की आवश्यकता है वो ये है, It is the number one characteristic of your enemy. आपके शत्रु की ये नंबर 1 विशिष्टता। Write it down. इसे लिख लीजिए। Your enemy never comes to you and say, आपका शत्रु कभी आपके पास आकर नहीं कहता, hello, Mr. So-and-so or Mrs. So-and-so. नमस्कार श्रीमान जी जो भी आप हैं, या नमस्कार श्रीमती जी जो भी आप हैं, I am going to deceive you today. मैं आज आपके साथ छल करने वाला हूं। He doesn't do that. वो ऐसा नहीं करता। He's too clever for that. ये करने के लिए वो बहुत चतुर है। He knows that that would not be deception. वो जानता है कि ये छल नहीं होगा। Someone said the following. किसी ने कहा है, Satan is not fighting churches, he is joining them. शैतान कलीसियाओं से लड़ नहीं रहा है, वो उनमें शामिल हो रहा है। For he does more harm by sowing tares than by pulling up wheat. क्योंकि गेहूं उखाड़ने से अधिक नुकसान वो आंसू बोकर करता है। He accomplishes more by imitation than outright opposition. वो पूर्ण विरोध के बजाय नकल करके अधिक कार्य करता है। Do you know what is the most dangerous lie? क्या आप जानते हैं कि सबसे खतरनाक झूठ क्या है? The most dangerous lie of all is the lie that resembles the truth. सबसे खतरनाक झूठ वो है जो सच्चाई जैसा दिखता है। Satan operates in the realm of denial of the truth. शैतान सच्चाई से इनकार के क्षेत्र में काम करता है। That's where he operates. यही वो कार्य करता है। When Satan came to Eve in the garden, अदन की वाटिका में शैतान जब हवा के पास आया, he didn't say to her, उसने उससे ये नहीं कहा, Eve, if you obey me instead of God, हवा यदि तू परमेश्वर के बजाय मेरी आज्ञाकारिता करे, you will go with me and all my fallen angels into the lake of fire. तो तू मेरे सब गिरे हुए दूत और मैं आग की झील में फेंके जाएंगे। She would never have obeyed him. वो कभी उसकी बात न मानती। But Satan is not stupid. परंतु शैतान मूर्ख नहीं है।
And the Bible says in Revelation 12:9, और प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 9 पद में बाइबल कहती है the devil is the one who deceived the whole world. कि शैतान ही है जो संसार के साथ छल करता है। Where could he begin in deceiving the whole world? संसार के साथ छल करने के लिए वो कहां से आरंभ कर सकता था? First of all, he began by deceiving a third of the angelic beings and getting them thrown out of heaven. सबसे पहले उसने 1/3 स्वर्गीय प्राणियों को छला और उन्हें स्वर्ग से निकलवाने के साथ अपना काम शुरू किया। Then he deceived the whole world when he went to our first parents, Adam and Eve. फिर उसने संपूर्ण संसार को छला जब वो हमारे पहले माता पिता आदम और हवा के पास गया। He knew if he could get them, he could get the rest of the world. वो जानता था कि यदि वो उन्हें फंसा लेगा तो पूरे संसार को छल सकता है। The problem with the story of Adam and Eve is it is so well known that people take it for granted. आदम और हवा की कहानी के साथ समस्या ये है कि ये इतनी प्रसिद्ध है कि लोग इसे हल्का सा लेते हैं। They do not stop to reflect upon the deception of the enemy. वो शत्रु के छल को प्रदर्शित करने से नहीं हटते। Satan did not come to Eve and said, शैतान ने आदम और हवा के पास आकर ये नहीं कहा, "Look, Eve, God is really a good God, but he really lied to you." देख हवा, परमेश्वर सच में एक अच्छा परमेश्वर है, लेकिन असल में उसने तुम्हारे साथ झूठ बोला है। In fact, that's exactly what he said. बल्कि असल में बिल्कुल यही उसने कहा। But he didn't say it openly and honestly and bluntly like this. परंतु ये उसने ईमानदारी, खुले मन से और साफ तरीके से नहीं कहा, He said it deceptively. परंतु ये छलपूर्ण तरीके से कहा। Here's what he said in effect. प्रभावपूर्ण तरीके से उसने ऐसे कहा, Eve, did God really say it that way? हवा, क्या परमेश्वर ने सच में ऐसा कहा है? Did you really hear it right? क्या तुमने बिल्कुल ठीक से सुना था? Did you really understand it this way? क्या तुमने इसे इसी तरीके से समझा? And you know what he did? और आप जानते हैं उसने क्या किया? Please listen carefully. कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। He made it possible for Eve to debate the issue. उसने हवा के लिए संभव किया कि वो इस मसले को उठाए। Listen to me carefully. मुझे ध्यानपूर्वक सुनिए। If Satan can get you to begin to debate any of the issues that are settled in the Word of God, यदि शैतान आपसे किसी भी ऐसे मसले पर बहस करवा सकता है जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हल हो चुका है, he is 2/3 of the way through defeating you. तो आपको पराजित करने का 2/3 रास्ता वो पार कर चुका है। If he gets you to debate the rightness and the wrongness of paying what you really owe to others, I want to give you some examples of how Satan works. मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि शैतान कैसे कार्य करता है। As you listen to some of these examples, you are going to realize that I have been studying Satan's operation. जैसे ही आप इनमें से कुछ उदाहरणों को सुनेंगे, आप महसूस करेंगे कि मैं शैतान के कार्य का अध्ययन कर रहा हूं। And I want to expose his deception to all the Christians. और मैं सब मसीहियों के सामने उसके छल को प्रकट करना चाहता हूं। He will come to you and say, "You have a problem in your marriage, don't you?" वो आपके पास आता है और कहता है, तुम्हारे विवाहित जीवन में समस्या है, क्या नहीं है? And yes, you do have a problem. और हाँ, आपको समस्या है। And then the demon continues. और फिर शैतान जारी रहता है। Don't you think that God wants you to be really happy? क्या तुम्हें नहीं लगता कि परमेश्वर चाहता है कि तुम सच में खुश रहो? And you say, "Yes, yes, I want to be happy." और आप कहते हैं, हाँ हाँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ। But you're not really happy in your marriage. परंतु आप असल में अपने विवाहित जीवन में खुश नहीं हैं। And then, in a matter of a short period of time, he has you compromising your marriage. और फिर थोड़े समय बाद ही वो आपसे आपके विवाहित जीवन में समझौते करवाने लगता है। And then he will tempt you to be unfaithful. और फिर वो बेईमान होने के लिए आपकी परीक्षा करने लगता है। Sometimes he may come to you and say to you, "The Bible is a good book." कई बार वो आपके पास आकर आपसे कहता है, बाइबल एक अच्छी पुस्तक है, Use it as an ornament. इसे आभूषण की तरह प्रयोग करो, Put it under your pillow. इसे अपने तकिए के नीचे रखना, It may protect you. ये तुम्हारी रक्षा करेगी। Or have it hanging in your car or somewhere else. या इसे अपनी कार या कहीं और लटकाओ And never read it. और इसे कभी नहीं पढ़ना। That is how he deceives you. इस तरीके से वो आपसे छल करता है। The Bible will not do you any good unless it is open. बाइबल आपके लिए कुछ भला नहीं करेगी जब तक कि इसे खोला नहीं जाता And to learn from it. और इससे सीखा नहीं जाता Know God through it. और इसके द्वारा परमेश्वर को नहीं जाना जाता। And the deception continues. और छल चलता रहता है।
He gets you busy all year long. वो पूरा साल आपको व्यस्त रखता है And he would say, it's enough to go to church maybe twice a year, और वो कहता है साल में 2 बार प्रार्थना भवन जाना काफी है, because he knows that going to church and hearing the word of God is going to change your life. क्योंकि उसे पता है कि प्रार्थना भवन जाकर परमेश्वर का वचन सुनने से आपका जीवन बदल जाएगा। Or he can come to you and say, you are too young to believe now. या वो आपके पास आकर कह सकता है कि विश्वास करने के लिए तुम अभी बहुत जवान हो, There is plenty of time. अभी काफी समय है, When you get older, you can believe. जब तुम बड़े हो जाओ तब विश्वास करना। Why don't you just go ahead and do exactly what you want? तुम क्यों जाकर वो नहीं करते जो तुम्हारी इच्छा है? God will understand परमेश्वर समझता है। and think how he gets you deceived that way. और सोचिए इस प्रकार कैसे वो आपसे छल करता है। Our time has come to an end for right now. अभी के लिए हमारा समय समाप्त हो रहा है And we're going to stop in order to give you time to reflect upon these words. हम समाप्त कर रहे हैं ताकि इन वचनों पर गौर करने के लिए आपके पास समय हो। And we hope that you join us again the same time on this wonderful station. और हम आशा करते हैं कि आप इसी समय दोबारा हमें इसी अच्छे पड़ाव पर मिलेंगे। Until then, we wish you God's richest blessing. तब तक हम आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना